Am I audible, everyone? Yes. Good morning, everyone. अच्छा, मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन है क्या? Let me introduce myself. Yes, I'm Pragati Rao, and I'm going to conduct your C programming sessions onwards. Good morning. गुड मॉर्निंग। वैसे नींद हो गई ना सबकी? यस। अरे बाप रे! डे 1 से ही आप ऐसे करोगे? यस। तो कैसे हो आप सब? सब कुछ बढ़िया है? प्लीज़ एवरीवन रिप्लाई दो। अब मेरी आवाज़ सुन के डर लगे ऐसा आवाज़ तो नहीं है? मुझे देख के तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यस, शुभांगी बोलो। आई थिंक कल आपका मार्गदर्शन सेशन हो गया है, राइट? यस। अच्छा, तो उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं सबके? नाइस। ओके। आज वैशाली मैम फिर से मीटिंग जॉइन करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। कुछ एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो वो होने के बाद फिर अपना सेशन कंटिन्यू होगा। ओके? Hello everyone. Good morning. Hello, good morning everyone. How's everyone? Fine. But I want to hear more energetic words. Are you doing great? Are you doing awesome today? So actually some of the students by mistake joined yesterday's link.
So I just had to tell them to come to this meeting. All right. So are you all excited towards this journey? Yes? Everyone is excited, enthusiastic? Awesome. All right. So I will just go ahead and explain the payment details, right? Yesterday we had the Margdarshan session wherein I had explained you about the overall course flow, how the course is going to be, what are the contents going to be covered under software testing and Java. And then we also discussed about the placement related queries. And now I am just going to explain the payment part of it. And after that, I will leave the meeting and your technical module will be starting. So there is criteria number one. If you want to go for installment. So if you somebody's camera is on, so request you to please switch off your camera. Okay, so installment, Java full stack or software testing, whichever course you opt for. If for your first installment, the amount that you need to pay is 11,800, which includes 18% GST, and the last date for start date will be 12th September, that was yesterday, and the end date is 26th September, Thursday. So by 26th September, if you make the payment, you are going to pay the first installment, that is 11,800, and the remaining 11,800 you need to pay by 12th of October. So 12th October, your entire payment will be done, whichever course you select, either Java full stack or software testing. Am I clear with this, everyone? ये इंस्टॉलमेंट वाला प्लान है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट के लिए जाना चाहते हो तो फर्स्ट आपको 11,800 फिर 11,800 ऐसे दो इंस्टॉलमेंट्स है जो सब 26 सितंबर फर्स्ट डेट होगा और सेकेंड डेट आपका रहेगा 12 अक्टूबर का। यदि आप इंस्टॉलमेंट में नहीं जाना चाहते हो, डायरेक्टली पे करना चाहते हो, सो योर टोटल फीस विल बी 23,600 एंड विच यू कैन पे लेटेस्ट बाय 12th ऑफ अक्टूबर। मतलब आप लास्ट डेट तक आप फी पे कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि लास्ट डे में सब लोग एक साथ पेमेंट करने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। सो बेटर यू मेक द पेमेंट बिफोर दैट। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपको जावा फुल स्टैक और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दोनों करना है सपोज, देन अगेन यू हैव द इंस्टॉलमेंट प्लान wherein first installment would be 17,700 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको भरना होगा 26 सितंबर तक, and that second installment is 17,700 which you need to pay by 12th of October. और अगर आप सारा फीस एक साथ भरना चाहते हो तो 35,400 will be the total fees that you need to pay by 12th of October. So am I clear with this everyone? तीन ऑप्शंस है आपके पास, है ना। यदि आप दोनों में से कोई एक कोर्स ले रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो या फुल अमाउंट एक साथ दे सकते हो, और अगर आप दोनों कोर्सेज लेना चाहते हो तो भी आप इंस्टॉलमेंट में और फुल अमाउंट एक साथ भर सकते हो। Am I clear with this everyone? Can you please type C for clear in the chat box? हाँ, और अगर आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में जाना है तो आपके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आप 26 सितंबर के अंदर ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरोगे। मतलब आप 27 सितंबर को आके नहीं बोलोगे कि मुझे इंस्टॉलमेंट में जाना है, देन दैट ऑप्शन इज क्लोज्ड, राइट। सो यू नीड टू टेक दिस डिसीजन अप टू 26 ऑफ सितंबर। अगर आपने फीस नहीं भरी है तो 12th अक्टूबर के बाद यदि आप एडमिशन लेने जाओगे देन देयर विल बी अ लेट फी ऑफ 3,000 रुपीज, और वो भी कब तक एप्लीकेबल होगा 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो 15th ऑफ अक्टूबर तक आप डिसाइड करो और बैच में एडमिशन लो, उसके बाद आप सीधे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लो, ठीक है। ये बैच क्योंकि ऑलरेडी एक महीना हो गया है ना, तो फिर एक महीने के बाद वापस लेट क्यों ज्वाइन होना है, इससे अच्छा आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन हो जाओ। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन, सबको क्लैरिटी है? हेलो, एवरीवन इज ओके विद दिस? Now, so is there a couple of students in this group who have joined today first time? कौन कौन आज फर्स्ट टाइम आए हैं? Can you please type F for first in the chat box?
Okay, Priyanka. So, whoever is coming today for the first time, I request you to please go through our yesterday's video. It has been published everywhere. It's on all the social medias. तो आप वो वीडियो आप एक बार देख लो. आप ग्रुप आपने ज्वाइन किया है क्या, टेलीग्राम ग्रुप? प्रियंका शिंदे. हाँ, तो वहां पे आपको लिंक वीडियो का कल का ऑलरेडी डाल दिया गया है. तो कल का वीडियो एक बार आप देख लो, है ना. उसमें सारे कोर्स के डिटेल्स एक्सप्लेन किए गए हैं डिटेल में. फेयर इनफ. एंड वन मोर थिंग एवरीवन, अगर आप अ, अगर आप किसी और सोर्स से यहाँ पे आ रहे हो, मीन्स वी हैव ऑल्सो पब्लिश द स्कैनर्स, और स्कैन करके आप आ सकते हो हमारे पास. सो आई एम सेंडिंग अ लिंक ओवर हियर. ये एक फॉर्म है, यू कैन सी इट इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स से ये फॉर्म का लिंक कॉपी कर सकते हो, और इसमें अपना बेसिक डिटेल आपको भरना है. सो यू कैन डू दिस आफ्टर द सेशन और ड्यूरिंग द सेशन, देखो आप जैसे आपको पॉसिबल होता है. सो हार्डली 2-3 डिटेल्स वी आर आस्किंग फॉर, जो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू नहीं आए हैं. They have come through some other sources. So please fill in their form. So now I would stop here, and Pragati is here. Pragati, can you please say hi? Yes, ma'am. Hello, Yes. everyone. Yeah. So Pragati will be your mentor for C, C++ programming, and she's an awesome trainer. So I am sure you are going to have a very good moment learning these concepts. So over to you, Pragati. I will leave the meeting. Wish you all the very best, everyone. See you. Bye bye. Yes. Hello, everyone. Good morning. अच्छा, मैम को गुड मॉर्निंग कह के हो गया क्या? अच्छा, गुड मॉर्निंग. Yes. Yes. First part is algorithm building. ओके. तो कल का अपना मार्गदर्शन सेशन भी हो गया और आज फी स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करके हो गया. अदर देन दैट, आपके कुछ टेक्निकल डाउट्स है जो आपको है, आज वो डाउट्स हम पहले क्लियर कर ले. यस. तो आपको जो भी डाउट्स है, आज हम पहले वो क्लियर कर लेते हैं. एनीवन, एनी क्वेश्चन अबाउट कोर्स, अबाउट एनीथिंग? Which platform you are using to conduct online? Google Meet. यही प्रियंका, आपने अभी गूगल मीट से जैसे मीटिंग ज्वाइन की, वही. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चिन्ह में अभी उसके लिए टाइम है. पहले तो अपना सी सी प्लस प्लस के मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए. सी के लिए मैं रहूंगी, सीपीपी के लिए कोई और भी हो सकता है, या फिर मैं ही कंटिन्यू कर सकती हूँ. तो मॉड्यूल वाइज ट्रेनर्स मेंटर्स कैन बी चेंज. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अपने पास बहुत सारे फैकल्टीज हैं. तो हो सकता है अमित सर ले, या फिर कोई मैम है, वो मैम कंडक्ट कर सकते हैं. तो वो आपको उस टाइम पे पता चलेगा. लेकिन यस, इतनी गारंटी है कि ट्रेनर ऑसम है. एल्गोरिथम बिल्डिंग करके ही सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है. सेशन टाइम यही रहेगा प्रियंका, सुबह 8 बजे. 8 to 9 विल बी दी टाइम फॉर आवर सेशंस. लैब टाइमिंग आपको पता चलेंगे. 2 टाइम्स पे रहेंगी, एक सुबह रहेगी और एक इवनिंग में रहेगी.
तो आप दोनों लैब सेशंस भी अटेंड कर सकते हो या फिर इतनी तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आपको एटलीस्ट 1 लैब तो टाइम पे लाइव अटेंड करने के लिए मिल जाएगी। अगर आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो तो उस तरीके से सोचें। अम, आपके डाउट्स अगर कोडिंग रिलेटेड है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। लैब सेशन में आपको कोई भी ट्रेनर नहीं कहेगा कि अनम्यूट मत करो। तो लैब ट्रेनर्स आपको वो परमिशन देते हैं कि जो भी डाउट है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, अगर मैसेजिंग पे आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर मैसेजिंग आपके लिए कंफर्टेबल है, तो मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। कोडिंग में कुछ एरर्स है, कुछ डाउट्स है, तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो। लैब सेशंस आप एन्जॉय करोगे, क्योंकि वहाँ पे सब बातें होती हैं। ओके प्रमेय? येस मयूर, अराउंड 3 मंथ्स, सी एंड सी प्लस प्लस दोनों मिला के। यस। और किसी को कोई क्वेश्चन? ऑफलाइन बैच में से रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर अवेलेबल रहेगी क्या? लाइक ऑनलाइन बैचेस? यस प्रमेय, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। एलएमएस करके जो है, तो एलएमएस के आपको रिकॉर्ड एलएमएस के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। लेकिन आई थिंक वो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट पहले करना होगा। तो ऐसे चल रहा है। यस, तो मिलेगी। उसके लिए अलग से कुछ फीस वगैरह पे करने लगती है, लेकिन एलएमएस के थ्रू रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। नाइस। प्लेसमेंट से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट नहीं है? पक्का? वैसे आप अगर इंटरैक्शन करोगे तभी मुझे बहुत सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स पता चलेंगे और आपके डाउट्स और आपके क्वेश्चन अपना लेक्चर ड्राइव करेंगे, ठीक है? मैं अकेली अगर बातें करती बैठूँगी, तो आप सुनने में इंटरेस्टेड हो क्या? वो ऐसे लगेगा कि कहीं पे तो कोई तो कीर्तन कर रहा है, हम सब कीर्तन अटेंड करने के लिए बैठ गए। वैसे वो सुनने होते हैं लेकिन हम सुनते नहीं हैं। ओके, फाइन। कोर्स स्ट्रक्चर देखिए कैसे रहेगा, क्या-क्या कवर होने वाला है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, यस साजिया, अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो तो यस, अभी जो क्लास चल रहा है वही आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। यस, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट। तो
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जावा फुल स्टैक ऐसे कोर्स ज्वाइन किया है, राइट? और कुछ स्टूडेंट्स है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी आपका एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा बीच में कहीं पे, तो वो अरेंज किया जाएगा। अमित सर शायद वो कंडक्ट करेंगे। यस, अमित सर इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, नो डाउट इन दैट। एक्सपीरियंस वाइज द बेस्ट। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्टरी सेशन, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे फ्लो रहेगा, एग्जैक्टली होता क्या है, वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके एवरीवन। अगर आपको, हाँ, अगेन कल शायद आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और अपनी जावा फुल स्टैक की बैच कौन से मॉड्यूल के लिए साथ रहने वाली है। जैसे कि C++ अपना साथ में होगा, आफ्टर दैट कोर जावा साथ में होगा, एंड फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के उनके उनके अलग से मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे, और जावा फुल स्टैक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रेमवर्क वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ये फ्लो सबको क्लियर है? और बीच में C++ होने के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मैनुअल टेस्टिंग के सेशन स्टार्ट होते हैं। मैनुअल टेस्टिंग पहले हम कवर कर लेते हैं, और उसी टाइम पे जावा फुल स्टैक का डीएस चल रहा होता है। तो डीएस यहाँ पे, वहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉरी मैनुअल टेस्टिंग, उसके बाद आगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग ही करना है, लेकिन ऑनेस्टली अभी मैनुअल टेस्टिंग को इतनी डिमांड नहीं है। अब सबको टूल्स चाहिए, और टूल्स जैसे कि सेलेनियम। अब ये टूल्स अगर हमें यूज़ करने हैं तो ऑब्वियसली कोर जावा आना चाहिए, इसलिए कोर जावा। डायरेक्टली कोर जावा में अगर हम कोड करने जाते हैं, नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बट फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपर्स आल्सो, अगर हम डायरेक्टली जावा में कोड करते हैं तो वो इक्लिप्स, हम इक्लिप्स ये आईडीई यूज़ करते हैं जावा के कोडिंग के लिए। वो प्लेटफ़ॉर्म देख के ही डर लगता है, भई ये क्या दिख रहा है? ये ऐसे क्यों आ रहा है? एग्ज़ैक्टली क्या है? जो प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो सच में डर लगता है वो इक्लिप्स का प्लेटफ़ॉर्म देख के। और वहाँ पे डायरेक्टली जावा के कुछ वर्ड्स है, कुछ कोडिंग करने के तरीके हैं, वो अलग हैं, फाइन? तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जाओगे, ऑनलाइन टू ऑफलाइन चेंज करना है। वैसे आपका नाम क्या है? मतलब आपको जैकपॉट करके ही बुलाया है क्या? उमेश पटेल। ओके, बस मीटिंग जॉइन करने के लिए वो नेम चेंज कर सकते हो क्या? उतना याद नहीं रहेगा, मैं फिर जैकपॉट मीम्स करके बुलाऊँगी आपको। ठीक है उमेश? यस, तो अगर आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो, उम, ओके, अच्छा मैं ही एडजस्ट कर लूँ, फाइन। अच्छा 30 सेशन के लिए, ओके। यस उमेश, तो ऑनलाइन अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो ऑनलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट करने के लिए आपको न्यू बैच में ही एडमिशन लेना होगा। व्हेयरएज़ अगर आपने ऑफलाइन जॉइन किया है एंड कुछ रीज़न्स की वजह से आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना है, तो फिर आप ऑनलाइन शिफ्ट हो सकते हो। बट एग्ज़ैक्टली क्या आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है? आपको ऑनलाइन ही करना है, तो ऑनलाइन अभी अच्छे से चल रहा है ना? तो आपको ऑफलाइन के सेशंस पहले देखने हैं, फिर ऑनलाइन में शिफ्ट होना, ऐसा कुछ है क्या? ओके, तो कर सकते हो। लेकिन आपके पास रीज़न वैसे होना चाहिए, नहीं तो ट्रायल के लिए ऑफलाइन में आ गया ऐसे मत करना, ओके? इफ यू हैव एनी जेन्युइन रीज़न ऑनलाइन कोर्स करने के लिए, तो वो आपको परमिशन दे देंगे। ओके, यस। तो जब हम कहते हैं जावा फुल स्टैक, तो जावा फुल स्टैक में सबसे पहले आने वाला है आपका फ्रंट एंड, करेक्ट?
और सबसे लास्ट में रहेगा आपका बैकएंड। फिर बीच में क्या रहता है? मिडल लेयर। वैसे ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है एवरीवन? यस? थैंक यू रिप्लाई देने के लिए। प्लीज ऐसे ही रिप्लाई दो। फाइन। सो फ्रंट एंड, मिडल लेयर और बैक एंड। तो क्या लगता है फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज आती होगी? आपको जो लगता है वो बताओ। यहाँ पे हम करेक्शन वगैरह देख लेंगे। गलत आंसर देने पे कोई भी डांटने वाला नहीं है आपको। तो यस, विच टेक्नोलॉजी विल कम्स अंडर फ्रंट एंड? HTML, ओके। HTML, CSS, perfect, JavaScript, React, perfect, Bootstrap, jQueries, Angular, yes. So HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Bootstrap, jQuery, ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा ही रहे हैं और ये सारे फ्रंट एंड में आते हैं। करेक्ट है? अगर जावास्क्रिप्ट क्लियर है तो रिएक्ट समझने में आसानी होगी। बहुत इजीली आप वो कैच कर सकते हो। इवन एंगुलर भी बहुत इजीली आप अडेप्ट कर सकते हो। एक बार बस प्रोग्रामिंग क्या होता है ये समझ में आ जाता है तो ये कोडिंग बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यस। देन कम टू द मिडल लेयर। तो मिडल लेयर में डेटाबेस नहीं होता है। ओके, आई थिंक किसी ने क्वेश्चन, रानी ने क्वेश्चन किया था, राइट? सो मिडल लेयर मीन्स डेटाबेस नहीं होता है, वो मिथ है। क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो हम कोड कर रहे हैं ना वो बैकएंड पे रहेगा। नो। तो बैकएंड में क्या रहता है? बैकएंड में डेटाबेस रहता है और जो कोड हम लिखते हैं वो मिडल लेयर होता है। ऐसे क्यों? तो फ्रंट एंड के थ्रू एक वेबसाइट है, वहां पे अपने सामने एक पेज है, कुछ लॉगिन डिटेल्स, कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम फिल कर रहे हैं, राइट? अब वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो मैंने फ्रंट पेज पे फिल किए वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जा सकते हैं क्या? तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्टर की जरूरत है, या उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए एक सपोर्टर की जरूरत है, एंड दैट सपोर्टर इज आर मिडल लेयर। तो फिर मिडल लेयर में क्या आएगा? अपना कोर जावा, एडवांस जावा, और अभी के लिए ये कोर जावा, एडवांस जावा। मैम आज कोर्स, yes विशाल, just a minute. So core Java, advanced Java, and after that framework. फ्रेमवर्क में भी अभी सबसे ज्यादा डिमांड जिसे है वो है स्प्रिंग बूट। एंड आई थिंक यू नो, हम स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट, ये तीनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन फ्रेमवर्क, राइट? तो सबसे पहले अपना हाइबरनेट कवर होगा, आफ्टर दैट स्प्रिंग, एंड आफ्टर दैट स्प्रिंग बूट। तो ये फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है। इवन अभी भी जो इंटरव्यू कॉल्स हो रहे हैं, जो स्टूडेंट से बातें हो रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि स्प्रिंग बूट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए कि प्लीज़ ऐसे कोर्स को बीच में ही सीरियसली लेना बंद कर दिया, ऐसे मत करना। बहुत लाइटली लेते हो बीच में आप कोर्स को, वो मत करना। एंड तक प्रॉपरली सेशंस अटेंड करना, इट विल हेल्प यू। ओके? एंड यस, देन बैकएंड में रहेगा अपना डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हम कौन सा डेटाबेस देखने वाले हैं? माइस्क्ल। ओके? एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज। सो हम जो यूज करने वाले हैं वो माइस्क्ल प्लेटफॉर्म रहेगा। मोर प्लेटफॉर्म्स है, ओरेकल वगैरह, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो आप लेक्चर में देखेंगे वो माइस्क्ल होगा। ठीक है? यस। अब विशाल आप जो कह रहे थे कि कोर्स स्ट्रक्चर, तो कोर्स डिटेल्स, तो कोर्स डिटेल्स में आप एग्जैक्टली क्या रेफर कर रहे हो?
मतलब अपने सी प्रोग्रामिंग का फ्लो कैसे रहेगा या एनीथिंग एल्स? अच्छा, नहीं आपने आज कोर्स डिटेल्स बता के क्वेश्चन किया तो मुझे लगा आपको कोर्स डिटेल्स जानने हैं। यस सुषमा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम जो बात कही थी कि डायरेक्टली इक्लिप्स का प्लेटफॉर्म देख के डर लगता है। तो स्टार्टिंग हम सीसीपीपी से करेंगे। आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में अगर जाते हो, तो हर एक लैंग्वेज में कुछ चीज़ें चीज़ें कांस्टेंट है, लाइक ऑपरेटर्स, आफ्टर दैट कंडीशनल स्टेटमेंट व्हिच इज नोन एज इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। आफ्टर दैट लूपिंग, फिर हर एक लैंग्वेज के लूप्स अलग-अलग है। कौन से लैंग्वेज में ये लूप वर्क होता है, तो वो नहीं होता, ऐसे कुछ है। लेकिन जनरली फॉर लूप और व्हाइल लूप ये हर एक कोडिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। सो लूपिंग की कांसेप्ट फिर कहीं पे इटरेटर वर्क होगा, कहीं पे लूप यूज़ होगा। ऑपरेटर, इफ एल्स, लूपिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फंक्शंस। फंक्शंस हमारे लिए की पॉइंट है, ओके? कौन से भी लैंग्वेज में कोडिंग करो, वहाँ पे आपको भर-भर के फंक्शंस यूज़ किए हुए दिखेंगे। तो फंक्शंस विल बी द कोर पार्ट, तो वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा आप कह सकते हो। उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम कोड लगेगा, लेकिन सेम कोड मल्टीपल टाइम्स करेंगे, अलग-अलग टाइप से करेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो ये जो कोर कांसेप्ट है, ये अगर हम सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो सी लैंग्वेज ईज़िली अडैप्ट कर सकते हैं या बहुत ईज़िली कर सकते हैं, ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैम पाइथन उससे भी ईज़ी है, लेकिन पाइथन सीख के हम कोर जावा को नहीं जा सकते, क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है, वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। उसे क कुछ भी रूल्स नहीं है। एक ही रूल है इंडेंटेशन फॉलो करना। इंडेंटेशन क्या होता है वगैरह सब देखेंगे, लेकिन पाइथन में कुछ रूल्स नहीं है। लेकिन अपनी सी, सी प्लस प्लस या जावा ये जो लैंग्वेजेज़ हैं, ये रूल्स से बंधे हुए हैं। ये कुछ रूल्स है वो ऐसे ही फॉलो करने होंगे, ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है? इसलिए पाइथन ईज़ी है, फिर भी हम पाइथन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? तो यस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले अगर सी, सी प्लस प्लस के सेशंस अटेंड करते हैं, तो उन्हें कोर जावा में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझने के लिए बहुत आसानी होगी। मतलब वहाँ पे आपको कुछ भी तकलीफ नहीं लगेगी, कुछ अरे नहीं ये तो डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। रीज़न ऐसा है कि कोर जावा में हर एक काम के लिए आपके पास सारी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल मिली हैं। उन्होंने रेडीमेड तैयार करके रखा है, हमें जाके सिर्फ यूज़ करना है। लेकिन कोई भी चीज़ यूज़ कैसे की जाती है? जैसे कि अगर हमने खुद के हाथों से कभी कपड़े धुए हैं, ठीक है? तो जो खुद कपड़े धोते हैं, उन्हें पता है कि नहीं भाई व्हाइट ड्रेस अगर है, वो कलर्ड ड्रेस के साथ रखेंगे, तो कलर लगने के चांसेस है। ये कब पता चला? जब आप खुद से कपड़े धो रहे थे, राइट? आपने खुद से कभी कपड़े धोए ही नहीं हैं, आपने कभी देखा ही नहीं है और वॉशिंग मशीन में डायरेक्टली सारे कपड़े डाल दिए, तो ऑब्वियस है व्हाइट कप अपना जो भी व्हाइट ड्रेस रहेगा, वो पूरा कलर से भर जाएगा। अदर जो भी अपने क्लॉथ्स हैं, उनके कलर से अपना व्हाइट ड्रेस पूरा भर जाएगा, करेक्ट? लेकिन जिन्होंने पहले खुद के हाथों से कपड़े धोए थे, उन्हें पता है कि नहीं भाई वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे हमें व्हाइट ड्रेस और कलर ड्रेस एक साथ नहीं डालने चाहिए, नहीं तो कलर लग सकता है। सेम प्रोसेसिंग है। ऐसा एग्ज़ाम्पल क्यों कनेक्ट किया? अभी वही दिमाग में आया, इसलिए वही एग्ज़ाम्पल बोल दिया। तो यस, ऐसा कुछ तो सी, सीपीपी पहले सीखने का रीज़न है। तो सी, सी प्लस प्लस अगर हम पहले पढ़ लेते हैं, तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। अगर अपना व्हाय क्लियर है ना, तो आगे की प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हम
सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपने व्हाय को क्लियर करने वाले हैं। और हर बार ये क्वेश्चन आपसे भी एक्सपेक्टेड है। कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्यों? और ये कॉलेज वाला वगैरह लेक्चर नहीं है, जहाँ पे क्वेश्चन करते थे तो टीचर्स एकदम से आग बबूल हो जाते थे। कभी देखा है? हैव यू एक्सपीरियंस दैट? एनीवन? क्वेश्चन करने के बाद ट्रेनर्स गुस्सा करते हैं, ये कभी कॉलेज में फील किया है? नो। अच्छा कॉलेज था फिर आपका, या फिर कह सकते हैं ट्रेनर्स अच्छे थे। ओके, बाकी सब नॉट इंटरेस्टेड? ओके। मी झोप खराब केली का सकाळ सकाळ तुमची? डू यू फील लाइक दैट? नहीं ना? यस। ओके। रामजोत सिंह, ठीक है। नहीं, पूरा सेशन अपना हिंदी में ही रहेगा। कुछ तो जोक्स रहेंगे, जो मैं मराठी में कभी-कभार कर लेती हूँ, लेकिन वो जोक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ। ओके? यस। वैसे कहाँ से हो सब? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड? कोर फील्ड से कितने स्टूडेंट्स हैं? कुछ बता सकते हो? इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, ओके। यस एवरीवन। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं अपने पास। 30 रिप्लाईज़ तो बनते हैं। आईटी फील्ड, ओके सुषमा, इलेक्ट्रिकल, ईसीई बैकग्राउंड, सीएस, आईटी। अरे बाप रे! प्रियंका आर्ट बैकग्राउंड। कहाँ से मतलब स्पेशलाइज़ेशन कहाँ पे है? बीए में? आईटी, बीसीए, सीएस, ओके, ईसीई, ईएनटी, मराठी, नाइस। बीसीएस, ओके, आईटी बैकग्राउंड, ओके। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईटी या कोर फील्ड से आए हैं, ओके। सो डोंट वरी, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। किसी को ये क्वेश्चन है क्या कि हम बेसिक से पढ़ेंगे या नहीं? हाँ, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ किया है। बातें कर रही हूँ ना। आपसे आज मुझे रिप्लाई एक्सपेक्टेड है। यस प्रमेय। आपका कोर्स ही ऑनलाइन है ना, इसलिए आपके सॉफ्ट स्किल के सेशन भी ऑनलाइन होंगे। अगर आप ऑफलाइन कोर्स में हो तो ऑफलाइन होंगे। इवन आपको आई थिंक कल बताया भी, आपके इंग्लिश स्पीकिंग के भी सेशंस होने वाले हैं, राइट? लैब अपनी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी रामजोत, मतलब नेक्स्ट वीक जो कमिंग मंडे है, कमिंग मंडे से तो मैं आपका टेक्निकल डिस्कशन, प्रॉपर टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। एल्गोरिदम बिल्डिंग क्या है, कैसे है, वो सारे क्वेश्चंस।
After that, your lab will be start. अरे नहीं रे दादा, नहीं रे, क्लास क्यों खत्म हो जाएगी? क्लास वगैरह खत्म नहीं हुई है। हाँ, after satisfying the credits on completion of which module I am able for placement. अब बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है प्रमेय, वो तो डीएस तक तो होती ही है। मतलब हमें बेसिक एल्गोरिदम्स आने चाहिए, वहां तक हमारी वहां तक अपना कोडिंग क्लियर होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो अपना सीपीपी में कंप्लीट कवर हो जाएगा। उससे पहले जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो सी में कवर होगा। आफ्टर दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये जो पार्ट्स रहते हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो डीएस में कंप्लीट होगा। तो ये 3 मॉड्यूल्स बेसिक से डीएस के बाद फिर आपका प्लेसमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होगा। 3 मंथ्स साजिया। डेटा स्ट्रक्चर ये अलग से मॉड्यूल रहेगा आपका, जहाँ पे आप एल्गोरिदम बिल्डिंग सीखते हो, क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे सॉल्व करना है। मतलब हम जो अभी कोड करेंगे हो सकता है वो कोड बहुत लेंदी हो, लेकिन वही लेंदी कोड बहुत कम लाइंस में भी कंप्लीट हो सकता है। वो डेटा स्ट्रक्चर में आपको कवर हो जाएगा। यस, फाइन। बाकी किसी को मतलब आप में से अब किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, राइट? सबको सब कुछ क्लियर है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर प्रमेय, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे नहीं बताऊंगी, लेकिन मिनिमम बता सकती हूँ। मिनिमम 6 to 7 मंथ्स, 7 मंथ्स मिनिमम। ओके। यस। डीएस कब तक कंप्लीट होगा? सच है, ऐसे टाइम पीरियड तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन अगर आपका सी प्लस प्लस कंप्लीट हो जाता है या हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाता है सीपीपी का, तो आपका डीएस स्टार्ट होगा। तो अराउंड 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स ये पकड़ के चलो। 4 to 5 मंथ्स में डीएस कंप्लीट हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल मॉड्यूल, सी, सी प्लस प्लस और डीएस, ये तीनों मिला के 4 to 5 मंथ्स बोल रही हूँ। सी प्लस प्लस विष्णु, डीएसए अपना सीपीपी लैंग्वेज में ही होगा, क्योंकि कोर जावा में ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड है विच इज नोन एज कलेक्शन। तो जावा में पढ़ने में मजा नहीं, सीपीपी में देखेंगे। यस।
यस, तो अपना सी का मॉड्यूल कौन से फ्लो से चलने वाला है, ये देख ले थोड़ा-सा। यस, ओके। आज के लिए मैं सिर्फ सी मॉड्यूल के बारे में ही बात करने वाली हूँ। बाकी मॉड्यूल्स हम मतलब जैसे-जैसे मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी और वो कवर हो जाएगा। तो यस, सी मॉड्यूल में सबसे पहले तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट देखना है। एग्ज़ैक्टली डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है एंड एवरीथिंग। ओके? इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, एक दिन में अपना ये मेमोरी मैनेजमेंट का पॉइंट कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी कंपाइलेशन प्रोसेस एग्ज़ैक्टली क्या होती है, कैसे होती है। सो मेमोरी मैनेजमेंट है, कंपाइलेशन प्रोसेस है। ये दोनों टॉपिक्स अपने कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टोकन्स। अब टोकन्स के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। तो व्हाट इज़ टोकन्स? ये क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो आपके पास मल्टीपल आंसर्स होंगे। फाइन? तो टोकन्स क्या होते हैं? ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स चल रहा है अभी तक। टोकन्स के बाद इसी टोकन्स में से ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हिच इज़ नोन एज़ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स पे काम करेंगे। आफ्टर द ऑपरेटर्स वी आर गोइंग टू सी कंडीशनल स्टेटमेंट एज़ आई मेंशन्ड इफ एल्स। आफ्टर दैट लूपिंग। लूपिंग के बाद फंक्शंस। आफ्टर फंक्शंस वी आर गोइंग टू सी पॉइंटर, जिसका हमें कॉलेज में बहुत डर लगता था। आपने फील किया है? ये पॉइंटर एग्जैक्टली क्या करता है पता ही नहीं चल रहा कभी। एनीवन? ठीक है। सो लूपिंग के बाद फंक्शंस, आफ्टर फंक्शंस वी आर गोइंग टू सी पॉइंटर, आफ्टर दैट array, after that structure, string and then structure. Okay, so this will be the flow of our C programming module. तो C प्रोग्रामिंग का ये फ्लो रहेगा, इसी फ्लो से हम जाने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस फ्लो में कुछ किसी को कुछ डाउट है, मैम ये टॉपिक नहीं होगा क्या, वो टॉपिक नहीं होगा क्या, एनीथिंग लाइक दैट? ओके, फाइन। अब ये मेमोरी मैनेजमेंट और कंपाइलेशन प्रोसेस है, इनके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं, दैट विल बी एल्गोरिदम बिल्डिंग। ओके, तो एल्गोरिदम बिल्डिंग मतलब क्या, या एग्जैक्टली क्या होने वाला है? तो एल्गोरिदम बिल्डिंग में हम एक्चुअल कोड में जो हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कोड कैसे लिखेंगे, कोड का ग्रामर क्या है, वो तो बाद में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्लियर हो रहा है, एग्जैक्टली क्या करना है, वो हम कितने स्टेप वाइज मैनर में लिख सकते हैं, वो देखेंगे। दैट विल बी आर एल्गोरिदम बिल्डिंग के सेशंस। ठीक है एवरीवन? तो वन बाय वन क्वेश्चंस लेके विदाउट कोडिंग सिर्फ पेन पेपर पे उसका स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन लिखना, ये अपना पहला टास्क रहेगा। और वो कंप्लीट होने के बाद हम वन बाय वन स्टेप आगे जाने वाले हैं। ठीक है? ओके, तो इस थ्रू आउट द कोर्स मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये मैं बता देती हूँ। फिर आपको क्या एक्सपेक्टेड है, वो आप मुझे बता देना। तो मुझे थ्रू आउट द कोर्स आपका आपकी कंसिस्टेंसी सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कंसिस्टेंटली अगर सेशंस करते हो, तो कल क्या हुआ था, इस टॉपिक की हेल्प से आज क्या हो रहा है, वो लिंक आपको ईज़िली मिल जाएगी। अगर आप 2-3 दिन लेक्चर्स नहीं कर रहे हो, अचानक से चौथे दिन लेक्चर अटेंड करोगे, तो आपको ही वो टॉपिक समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि लिंक नहीं लग रही है। ओके? तो ये मत होने देना कभी। वो लिंक लगने दो,
और लिंक लगने के लिए आपको रेगुलर सेशंस अटेंड करना मैंडेटरी है। देन सेकंड चीज़, सबके पास अलग से नोटबुक चाहिए, जो भी लेक्चर में चल रहा है, वो लेक्चर में नोट करके लेना इम्पोर्टेंट है। मैं खुद आपके साथ ये पेपर अभी जैसे मैंने नोट्स क्रिएट किए, तो हर रोज़ जो नोट्स मैं यहाँ पे बनाऊँगी, वो आपको ग्रुप पे शेयर किए जाएँगे, नो डाउट इन दैट, ठीक है? तो मैं जो नोट्स बना रही हूँ, वो आपके साथ शेयर होंगे। अगर मैं आपको कोई कोड करके दिखा रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी मैं बातें कर रही हूँ, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, जिस तरीके से आपको खुद को एक्सप्लेन करना है, वो आपके पास नोट डाउन करके रखो। कल जैसे आपको बताया गया कि आपके मॉक होने वाले हैं, आपके प्रेज़ेंटेशन रहेंगे, उसके बेसिस पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स रहेंगे। तो क्या लगता है, मैंने आपको एक डेफ़िनेशन बता दी, तो वो डेफ़िनेशन आपको ऐसे ही याद रहेगी मॉक तक? जब कभी आपका मॉक होगा 2 मंथ्स के बाद, तो 2 मंथ्स तक आज की डेफ़िनेशन याद रख सकते हो? येस और नो? नहीं, करेक्ट। तो 2 महीने तक तो याद नहीं रहेगी, ओके। मैंने जिस लैंग्वेज में बताया, उसी लैंग्वेज में लिख के ली, जैसे अपने टेक्स्ट बुक में रहता था। तो आपको टेक्स्ट बुक की डेफ़िनेशन याद रहती थी या आप पूरा नाइट पढ़ के वो याद करके जाते थे? हुकम पट्टी, जिसे हम मराठी में कहते हैं, वही करते थे? याद करके जाते थे, जिसे हम रट्टा मारना कहते हैं। कुछ भी हो जाए, ये लिखना ही है। ऐसा करते थे। लेकिन वो करके बस उस दिन के लिए ही याद रहता था। उसके बाद अगर हमें कोई वही डेफ़िनेशन पूछता है, तो हमें याद नहीं आएगा। एम आई राइट एवरीवन? और हमें ये नहीं करना है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें इंटरव्यू तक याद रखना है। और अगर वहाँ तक याद रखना है, तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना बहुत ज़रूरी है। अपनी लैंग्वेज में उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी लैंग्वेज मतलब मैं हिंदी, मराठी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो किसी इंसिडेंट से अपनी कांसेप्ट को मैच कर लेते, कनेक्ट कर लेते और उस इंसिडेंट के बेसिस पे वो उन्हें याद रहता है। तो आप अपनी कुछ भी चीज़ ढूँढ सकते हो, जिससे आप अपना एक टॉपिक रिलेट करके उसे याद करोगे। चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगेन, सामने वाले को एंड टू एंड डेफिनिशन एक्सपेक्टेड नहीं है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है, आप वो कांसेप्ट सामने वाले को एक्सप्लेन करते हो, सामने वाला सैटिस्फाई हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड दिस। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डेफिनिशन का, नॉट नेसेसरी हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि वो कीवर्ड अगर अपने उस ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, तो वो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। फिर वो कीवर्ड्स आपको कैसे पता चलेंगे? वो कीवर्ड्स आपको लेक्चर्स से, आपको आपके लैब सेशन की हेल्प से वो कीवर्ड्स मिल जाएँगे। आपको बस वो कीवर्ड्स नोट डाउन करके रखने हैं। बाकी पूरी कांसेप्ट आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करो, बस वो एक्सप्लेन करते टाइम कीवर्ड्स वहाँ पे यूज़ होना चाहिए, ठीक है? तो ये टेंशन तो चला गया कि डेफिनिशन याद कैसे रखेंगे, क्योंकि रखनी ही नहीं है। हमें बस कांसेप्ट समझनी है, वो कांसेप्ट सामने वाले को एक्सप्लेन करनी है। फाइन? और इसके लिए आपके साथ नोटबुक होना ज़रूरी है, सो दैट लेक्चर्स में जो कुछ भी चल रहा है, वो आप नोट डाउन करके लें। अब आप मुझे बताओ, आपको इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेड है? एग्ज़ैक्टली का क्या-क्या टॉपिक यहाँ पे कवर होने चाहिए? कितने बेसिक लेवल से, कितने स्क्रैच से ये सब प्रोसेस होनी चाहिए?
यस मयूर, वो आपको ग्रुप पे आ जाएगी। एडमिन विल शेयर विथ यू दैट। ओके। वैसे सबने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है? यस। ओके, तो ग्रुप पे ही आपको ये क्लास के जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके सारे रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टार्टिंग के कुछ 17-18 लेक्चर्स होते हैं जो आपके साथ शेयर होते हैं ग्रुप पे। और फ्री डेमो सेशंस अपने एक फर्स्ट एक मंथ के लिए चलेंगे। तो अब 12 सितंबर को स्टार्ट हुए हैं तो 12 अक्टूबर तक अपने फ्री डेमो सेशंस चालू रहेंगे। ओके। यस। टेक्निकली क्या एक्सपेक्टेड है? ओके, नो वरीज, वो हो जाएगा। ओके, मैथमेटिक्स से कितने स्टूडेंट को डर लगता है? कुछ भी बताओ लेकिन मैथमेटिक्स मत बताना। ऐसे कोई फील करता है? नो। ओके। तो मैथमेटिक्स सबको पसंद है, राइट? तो कोडिंग स्टार्ट होते टाइम अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी रोएगा नहीं। हम तो कोडिंग करने वाले थे, फिर मैथ्स क्यों आया? करेक्ट ना एवरीवन? ओके, ठीक है। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें क्यों की है, क्योंकि एज यू नो सैटरडे संडे सेशंस नहीं रहते हैं, राइट? तो आज कोई टॉपिक इनिशिएट करके भी नहीं होता। और अगर मैं टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करूंगी तो फिर हमें बात करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर टेक्निकल डिस्कशन ही होता रहेगा। इसलिए आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही थी। लेकिन ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, इवन अगर अपने टेक्निकल सेशन स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे भी आपको जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न है, वो आप बता सकते हैं। ओके एवरीवन? वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा है। आपको जो डाउट्स है, जिस टॉपिक के बारे में डाउट आप पूछ सकते हो। सैटरडे संडे सिर्फ टेक्निकल सेशन नहीं रहेगा, लैब सेशंस रहेंगे। ठीक है? मतलब सैटरडे को तो लैब सेशन कंपल्सरी रहेगा। और अगर जरूरत लगती है तो संडे को भी अरेंज किया जाएगा। संडे को रहेगा ही, ऐसे नहीं है। संडे आपको ऑफ मिलेगा। लेकिन यस, लेक्चर्स के लिए सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इफ नीडेड देन सैटरडे को भी सेशंस रहेंगे। यस, कल और परसों हॉलीडे। फ्लो क्या रहने वाला है, सी मॉड्यूल कैसे आगे जाएगा टॉपिक वाइज, ये क्लियर है? लैब सेशंस के बारे में और किसी को कोई डाउट है?
कुछ भी डिफरेंस नहीं है प्रमेय, बस ऑफलाइन में आपको अपने ऑफिस पे आके क्लासरूम में बैठना है और ऑनलाइन में आपको अपने घर बैठ के कोर्स करना है। बस यही डिफरेंस है। फैकल्टीज अलग है लेकिन कंटेंट सेम है, पढ़ाने का तरीका सेम है। टीचिंग में आपको कोई कहीं पे भी कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, और वहाँ पे एसी है। मतलब क्लासरूम में एसी है, तो एसी में बैठ के आराम से लेक्चर्स कर सकते हैं सारे। यस, थैंक यू। मतलब पहली बार ऐसे हुआ है कि पूरा सेशन हुआ लेकिन कोई हँसा नहीं। लेकिन यस प्रमेय, थैंक यू। वैसे इमोजीज है अपने पास, तो उनका यूज़ अच्छे से कर लो। यूटिलाइज़ेशन होना चाहिए, राइट? सोर्सेज़ का। यस, थैंक यू। तो उन इमोजीज का यूज़ करो, हँसने के लिए, थम्स अप देने के लिए। यस, फाइन। ओके देन, हम अपने एक्चुअल टेक्निकल डिस्कशन के लिए या जो अपनी जर्नी कोर्स की स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मंडे को मिलेंगे, ठीक है? ना ही प्रमेय, क्यों? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन बैच का टाइम, लेक्चर का तो वैरी नहीं होगा। आपका लेक्चर कंपल्सरी सुबह 8 टू 9 ही रहेगा थ्रू आउट द कोर्स। यस, फाइन। ओके देन, शैल वी स्टॉप एवरीवन? तो मंडे से पहले तो हम मेमोरी मैनेजमेंट कौन से लेवल पे होती है, कैसे होती है, वो देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद एल्गोरिथम बिल्डिंग। ओके? और मेमोरी मैनेजमेंट का पॉइंट अपने लिए सच में इम्पोर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ वो सेशन मिस मत करना। यस। चलो एवरीवन, बाय-बाय। मंडे को हैं। ये यस प्रियंका बोलो। अच्छा ओके, गलती से हुआ, नो प्रॉब्लम। यस एवरीवन, बाय-बाय। हैव अ नाइस